Hello students, in the previous classes we have completed theory of demand. Now we are going to start with the topic elasticity of demand. First of all we have to know what is the meaning of elasticity. Because demand, the demand of any good moves in the opposite direction. You know the relation between the price and the demand. Between them is a inverse relationship, we can say, negative, opposite relation, anything we can say about that. But the impact of the price changes is always not the same. When we are talking about the durable goods, non-durable good, comfort zone goods, luxurious good, necessity good, so every time the movement of the prices impact on the demand, but the price impact on the demand is not the same. Yes, they are inverse relation. We can say opposite relation. But how much impact is on the demand? So it means we have to know the percentage changes in the price. So what percent, if some changes going on in the price, what impact of the demands in the market? What percentage of changes? Now, sometimes the demand for good changes considerably even for the small price changes. कई बार ऐसा होता है कि प्राइस में ज़रा सा चेंज होता है, डिमांड में बहुत लार्ज स्केल में चेंजेस हो जाता है. कई प्राइस में बहुत ज़्यादा चेंजेस होता है, डिमांड में चेंजेस नहीं होता है. तो यहाँ हमें समझना पड़ेगा वाई दिस इज गोइंग टू बी हैपन एंड व्हाट परसेंटेज चेंजेस इज देयर. On the other hand, there are some goods which for the demand is not affected, right, much by the price changes. कई बार ऐसा होता है प्राइस में कोई भी चेंजेस, डिमांड में कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं, तो वाई दिस इज गोइंग टू बी हैपन? तो डिमांड फॉर सच गुड्स आर वेरी रिस्पॉन्सिव to the price changes, while demand for all certain others are not respective to the price changes. तो इसका मतलब प्राइस में जो भी चेंजेस होता है, डिमांड में डिफरेंट चेंजेस देखने को मिलता है. तो हम इन्वर्स नेगेटिव ऑपोजिट रिलेशन कह सकते हैं, लेकिन कितना चेंजेस होता है इसको जानने के लिए हम परसेंटेज में देखेंगे कि प्राइस में कितना परसेंटेज चेंज हो रहा है, तो डिमांड में कितना परसेंटेज चेंजेस इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है. Now, the price elasticity of demand for a good is defined as a percentage change in demand for the goods divided by the percentage in price. यानी percentage price भी हम देखेंगे और percentage demand देखेंगे. अब इससे bifurcate हो जाएगा कि हाँ inverse relation है, लेकिन कितना impact पड़ता है वो हमें percentage से मिल जाएगा. Now, elasticity of percentage is determined by this formula. You have on online classes we have studied about the percentage change in demand for the good, and by if we are dividing with percentage change in price of the good. Here ED means price of elasticity demand. We can write PED, we can write ED also. Now if we want to percentage change in demand, how it comes from? percentage demand निकालना है तो percentage demand निकलता है डेल्टा Q by Q. डेल्टा Q होता है चेंज इन डिमांड, यानी पहली डिमांड क्या थी, दूसरी डिमांड क्या थी, दूसरी से पहली को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं दैट इज चेंज इन डिमांड. और Q मतलब इनिशियल, यानी पहली डिमांड क्या थी. यदि मल्टीप्लाई 100 से कर देते तो 100 क्योंकि परसेंटेज है तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड निकल जाता है. अब परसेंटेज चेंज इन प्राइस मुझे निकालना है तो परसेंटेज मल्टीप्लाई 100, वो तो सिंपल है. अब हमें चेंज इन प्राइस करना है तो इनिशियल प्राइस बाय चेंज इन प्राइस बाय इनिशियल प्राइस को यदि हम डिवाइड कर देते हैं तो नेचुरल सी बात निकल जाता है. अब यदि इसे रेसिप्रोकल कर दिया जाए, नीचे वाले को ऊपर लाया जाए, तो डेल्टा Q बाई Q मल्टीप्लाई P बाई डेल्टा P बनेगा. और इसे आगे चलकर हम फॉर्मूले में पुटअप करके डेल्टा Q बाई डेल्टा P मल्टीप्लाई P बाई Q भी लिख सकते हैं, right? So in this way the last formula what we comes delta Q by delta P multiply P by Q, it's called a change method. और फर्स्ट वाला परसेंटेज मेथड है, यानी हम जब भी आगे चलकर सम्स सॉल्व करेंगे तो हम या तो परसेंटेज मेथड या चेंज मेथड से सम्स को सॉल्व करेंगे. नाउ वन एग्जांपल इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू. सी ओल्ड प्राइस मीन्स इनिशियल प्राइस इज गिवन कि कोई भी प्रोडक्ट है उसकी प्राइस 5 रुपये है और नई प्राइस जो है, जो सेकेंड प्राइस है वो 7 रुपये है. मान लो एक कंज्यूमर है, यदि 5 रुपये है तो ओल्ड क्वांटिटी यानी इनिशियल क्वांटिटी क्या है, वो 15 यूनिट
15 यूनिट्स को बाय करता है या कंज्यूम करता है कैन से। एंड न्यू प्राइस 7 था, जब 7 रुपीज़ हो जाता है तो वही प्रोडक्ट डिक्रीज़ कर देता है, 12 कर देता है। अब इस फॉर्मूले में जब हम पुटअप करते हैं, हमारा जो फॉर्मूला है चेंज इन परसेंटेज वाला, यदि देखो तो उससे सब्ट्रैक्ट करके एक सॉल्यूशन निकला है, जो हमने ऑनलाइन क्लासेस में इस तरह के कई सम्स किए हुए हैं। नाउ मूविंग ऑन टू अदर पार्ट, Therefore, an example of the price, इससे हमें पता क्या चलता है कि कोई भी प्रोडक्ट हो उस पर जब हम हर एक प्रोडक्ट का, ये तो एक सिंपल एक जनरल एक फॉर्मेट दिया था, एक प्रोडक्ट दिया था एग्जाम्पशन के लिए। अब उसमें गोल्ड एक रख लो, सॉल्ट रख लो, पेट्रोल रख लो, कोई भी के दो प्रोडक्ट के दो प्राइजेस रख लो, एक पहली एक बाद की, और डिमांड रख लो, तो हमें परसेंटेज में पता चलेगा कि किस प्रोडक्ट में कितना चेंजेस होता है। चेंजेस होता है, इनवर्स रिलेशन होता है, लेकिन कितना चेंजेस होता है तो ये पता चल जाएगा कि हमारा नेसेसिटी आइटम है तो उसमें कम चेंजेस देखने को मिलेगा। इज इट करेक्ट? मूविंग ऑन टू सेकेंड पार्ट, दैट इज इलास्टिसिटी अलोंग अ लीनियर डिमांड कर्व, नेक्स्ट वीडियो, इन द नेक्स्ट वीडियो।